Good morning student, I am your science teacher. Today I am going to start from melting point. So let's understand first what is melting. Melting is a process at which solid start to melt into liquid. Now what is melting point? The temperature at which substance start to melt. The temperature at which substance start to melt is called melting point. For example, ice melt at 0 degrees Celsius. So melting point of ice is 0 degrees Celsius. So now move on to the next topic. What is boiling point? Before the study of boiling point, we will have to understand what is boiling process. Okay, the boiling is a process at which liquid convert into vapor. It's called boiling. Now boiling point, the temperature at which liquid start to boil, this temperature is called boiling point. For example, water start to boil at 100 degrees Celsius. That is why boiling point of water is 100 degree Celsius. ओके, अब हम इसको आगे एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. एक्टिविटी को आपको ध्यान से देखना है. Now water is going to start boil at 100 degrees Celsius. Now temperature of water has been reached at 90 degrees Celsius. After some time you will see this temperature will reach at 100 degrees Celsius. At the 100 degrees Celsius water completely start to boil from the bulk. So now student, let understand what is boiling process and how does it happen for any liquid, right? So student, as we supply heat to the liquid from any source of energy, first liquid particles start moving even faster. At a certain temperature they got enough energy to break their force of attraction from each other, and at this temperature also liquid particle convert into vapor, and this temperature is called boiling temperature or boiling point, right? So students, next thing we will have to understand, boiling process is a bulk phenomena. Boiling process is a bulk phenomena because particle of liquid from the bulk of the liquid gain enough energy. This area is called bulk, and the particle from the bulk of the liquid gain enough energy to change into vapor state, right? So when we will study evaporation is a surface phenomena, but boiling is a bulk phenomena. So keep remember this point in your mind. मैं बाद में कुछ क्वेश्चंस को आपको वीडियो के बीच में से भी बाद में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगा. सो आपको इसको ध्यान से समझना है और कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड भी करना है. सो स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. तो हमें पता है कि देयर आर 3 मेन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. मैटर इन तीनों स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. तो अब आपको सोचना है स्टूडेंट, क्या ये तीनों स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं या नहीं. आपका आंसर यस और नो में से होना चाहिए. सोचो. यस, ऑब्वियसली स्टूडेंट, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं. फॉर एग्जांपल के लिए सॉलिड स्टेट में आइस एग्जिस्ट करता है. अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर बन जाता है. लिक्विड स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर हम और हीट प्रोवाइड करते हैं तो आइस जो वाटर है वो फिर से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम गैस स्टेट का जो वेपर है अगर उसको कूल करें, प्रेशर इंक्रीज करें, हीट कम करें तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा. और लिक्विड में और प्रेशर इंक्रीज करेंगे और हीट को और कम कर देंगे तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दैट मीन्स कि ऑल दीज 3 स्टेट आर इंटर कन्वर्टेबल फ्रॉम वन टू अनदर, राइट, जस्ट बाय इंक्रीजिंग हीट और डिक्रीजिंग प्रेशर, और वाइस वर्सा. या हम इसका ठीक उल्टा कर सकते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और हीट को डिक्रीज करना पड़ेगा. So student, after the study of interconversion of state of matter, we will have to move on to the next topic. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो अभी ये आपको राइटिंग दिख रही है ये तो बहुत क्लियर दिख रही होगी ना. लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने बोला था मुझे कि सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैंने आज कोशिश किया कि इसको और ज़्यादा फाइन करने की, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट.
सो स्टूडेंट, व्हाट इज लेटेंट हीट? द वर्ड लेटेंट मीन्स होता है हिडन, जो छुपा हुआ है, जो हाइड है। तो वर्ड लेटेंट मीन्स क्या होगा? हिडन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वन स्टेट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर स्टेट, राइट। जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज होता है टू वन स्टेट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर स्टेट, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आइस सॉलिड है, अगर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो पहले कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेगा और फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। चलो अब हम स्टडी करते हैं लेटेंट हीट की। तो द वर्ड लेटेंट मीन हिडन होता है, हिडन मतलब जो छुपा होता है, और लेटेंट हीट का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वन स्टेट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर स्टेट। मतलब हमें किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी थर्मोमीटर में विजिबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको हिडन एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज दैट एनर्जी यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। सो दैट्स एनर्जी ऑलवेज इज हिडन, डू नॉट शो इन द थर्मोमीटर। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर हमें उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले उसको प्रोवाइड करानी है, और वो एनर्जी थर्मोमीटर में कोई भी चेंज इन टेम्परेचर शो नहीं करेगा, तो वो हीट हमारी तब तक क्या रहेगी? लेटेंट हीट रहेगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमें लिक्विड को कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो लिक्विड को कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो पहले कुछ टाइम तक कोई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब लिक्विड will take the some specific amount of energy to break down the force of attraction, and then that's why this energy will be height, right। और ये एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। अब हम लेटेंट हीट को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी के थ्रू हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट, एंड लेटेंट हीट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप आगे जाके फिर सॉल्व कर पाओगे। लेटेंट हीट को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो अभी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है, और हम इसमें कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट सप्लाई करने पर ये जो टेम्परेचर है ये अभी भी कांस्टेंट बना है। तो जो ये एनर्जी सप्लाई हो रही है इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसी एनर्जी को और इसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। एंड दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, सो दैट्स वाई देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर अब हम देखेंगे तो धीरे से टेम्परेचर अब राइज हो गया है, तो दैट मीन्स अब इसका लेटेंट हीट फेज ख़त्म हो गया है। लेटेंट हीट को समझने के बाद हम लेटेंट हीट के टाइप समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन यूज होगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट यूज होंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो यूज होता है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए होता है, कि मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड टू वेपर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज। So by applying pressure we can change gas into liquid and liquid into solid। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और मोर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन अ गैस, गैस कैन बी compressed and particle of gas come closer
and even on applying more pressure particle come closer and convert into solid. So in this way, on applying pressure, gaseous state of matter can be converted into liquids and then into solid. Now end of the video, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब कोई स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो उस समय टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो आंसर तो लेटेंट हीट से रिलेटेड होगा, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, व्हाई आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जो 273 केल्विन है दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है, और 273 केल्विन आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 273 केल्विन टेम्परेचर इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आइस 273 केल्विन पे फ्रीजेस होता है तो वो मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग में, मतलब अपना कूलिंग इफेक्ट मोर प्रोड्यूस करता है देन द वाटर at the same temperature. So give your reason for this question. अब अगर हमें सेकंड का आंसर अंडरस्टैंड करना तो हमें ये समझना होगा कि 273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। सो इन केस ऑफ आइस एट 273 केल्विन और यू कैन से 0 डिग्री सेल्सियस, देयर विल बी change in state and ice lose energy as a latent heat. That is why ice produce more effective. That is why ice produce more cooling effect than the water. But in case of water at the same temperature, there will be no change of state will takes place. That is why water produce less cooling effect than the ice. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रोड्यूस मोर बर्निंग, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब यहाँ पे भी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चन है कि जो बॉइलिंग वाटर होता है और स्टीम होता है उसमें से बर्निंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली स्टीम का होता है, स्टीम का बर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये आंसर भी आपका लेटेंट हीट से रिलेटेड होगा, लेटेंट हीट से। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होगा। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में जो स्टीम है वो स्टीम मोर एनर्जी एक्वायर करता है एज ए लेटेंट हीट और कन्वर्ट होता है वेपर में, इसलिए इसका बर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इन दिस वे यू विल हैव टू फाइंड आंसर बाय योर ऑन एफर्ट, राइट। सो ये सारे हिंट मैंने आपको दे दिए, आंसर आपको करेक्टली लिखना है और सही तरीके से। मुझे डोंट यूज़ गूगल और एक्सेट्रा और जो भी साइट्स हैं वहाँ पे ढूंढने की कोशिश मत करा करो। अपने ऑन एफर्ट से और अपनी मेहनत से क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करा करो। ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मैं बाद में क्वेश्चन वीडियो के बीच में से भी बना के दूंगा। ठीक है।